Friends, and welcome to my YouTube channel. In this session I am going to have the second part of chapter number 1, The Portrait of a Lady for You, which is written by Khushwant Singh. In the first part you have read about author's grandmother, how she looked in her old age, how was her behavior, what kind of personality she was, right? In this chapter also, in the first part, Khushwant Singh told us about his grandfather, that how his grandfather looked in the portrait. And then after that, Khushwant Singh was sharing with us the phases which he spent with his grandmother all through his life. In the first phase, he told us about the bond that he used to share with his grandmother when he was living in the village. He and his grandmother, they both were very good friends. He was living in his childhood with his grandmother in a village where his parents left him and they both went to the city to earn little more and to get themselves settled. In village, the author and grandmother used to spend a very good time. Grandmother took every possible care of her grandson. She used to wake him up early, she used to take him to school, she used to prepare breakfast, she used to recite prayer, and she wanted that Khushwant Singh should have learnt that prayer by heart. Grandmother was also a very kind and serving lady. She used to take stale chapatis with her, and at the time of return, when they both were returning from school, she used to give those stale chapatis to the village dogs. So, in the first part of this story, you have read about grandmother's characteristics. What kind of personality was she? Now we will begin with the second part of this story. So, let's start with the further paragraphs. I will explain the further paragraphs for you. My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. The priest taught us the alphabet and the morning prayer, while the children sat in rows on either side of the veranda, singing the alphabet or the prayer in a chorus. My grandmother sat inside reading the scriptures. When we had both finished, we would walk back together. This time, the village dogs would meet us at the temple door. They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. So students, जिस स्कूल में ऑथर अपने चाइल्डहुड में जाया करते थे व्हेन ही वाज लिविंग इन द विलेज, वो स्कूल टेम्पल के बिल्कुल पास में था और उस स्कूल में प्रीस्ट उन्हें पढ़ाया करते थे. प्रीस्ट उन्हें क्या पढ़ाते थे? प्रीस्ट उन्हें अल्फ़ाबेट्स पढ़ाते थे, मॉर्निंग प्रेयर्स पढ़ाते थे और सभी बच्चे कोरस में यानी कि एक ही टोन में उस प्रेयर को बोला करते थे. सभी बच्चे अल्फ़ाबेट्स बोला करते थे, प्रेयर्स बोला करते थे. और ग्रैंडमदर हैड अ हैबिट ऑफ रीडिंग स्क्रिप्चर्स. ग्रैंडमदर की आदत थी, वो स्क्रिप्चर्स बहुत पढ़ती थी, तो इसीलिए वो खुशवंत सिंह को स्कूल छोड़कर टेम्पल चले जाया करती थी और वहाँ पर वो स्क्रिप्चर्स पढ़ा करती थी. स्क्रिप्चर्स जैसे कि हमारे एपिक्स होते हैं, रामायण होती है, गीता होती है, तो वहाँ बैठ के अपने स्क्रिप्चर्स पढ़ा करती थी. शी वॉज़ अ रिलीजियस लेडी. वो काफ़ी स्पिरिचुअल और रिलीजियस लेडी थी, राइट. और जब खुशवंत सिंह का स्कूल ओवर हो जाता था, सो ग्रैंडमदर उन्हें अपने साथ वापस लेके अपने घर आया करती थी. वैन दे बोथ वर कमिंग टू देयर होम, तो उन्हें रास्ते में कौन मिलते थे? विलेज डॉग्स मिलते थे. जैसा कि आपने पार्ट 1 में पढ़ा, दैट ग्रैंडमदर वाज अ सर्विंग लेडी एंड शी यूज्ड टू कैरी स्टेल चपातीस फॉर विलेज डॉग्स. तो जब वो लोग स्कूल से वापस घर लौटा करते थे, स्कूल और टेम्पल से, तो रास्ते में उन्हें विलेज डॉग्स मिलते थे और ग्रैंडमदर उन विलेज डॉग्स को जो चपाती वो अपने साथ कैरी करती थी, वो चपातीस दिया करती थी.
डॉग्स भी बड़े एक्साइटेड होकर अपने पीस को लेने के लिए, अपनी चपाती को लेने के लिए वो ग्रैंड मदर और ऑथर के पीछे पीछे चला करते थे, ग्राउल करते थे, चिल्लाते थे, एक दूसरे से लड़ते थे, फाइट करते थे अपनी चपाती को लेने के लिए। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ से सेकेंड फेज स्टार्ट हो जाता है, सेकेंड फेज ऑफ ऑथर एंड ग्रैंड मदर्स बॉन्ड। ग्रैंड मदर और ऑथर के बॉन्ड का सेकेंड फेज। फर्स्ट बॉन्ड आपने पढ़ा इन द फर्स्ट फेज में आपने पढ़ा दैट दे बोथ वर शेयरिंग अ वेरी लविंग बॉन्ड वेयर ऑथर वॉज लिविंग इन द विलेज with his grandmother when he was a child and they had really spent a very precious time. दोनों ने बहुत ही अच्छा समय गुजारा। ग्रैंड मदर ने ऑथर का बहुत ध्यान रखा, उनको स्क्रिप्चर्स पढ़ाए, प्रेयर सिखाने की कोशिश की। अब जो सेकेंड फेज़ यहाँ से स्टार्ट होता है, जैसे आपने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था दैट ऑथर्स पेरेंट्स left to the city to earn little more and get themselves settled. Now his parents got settled comfortably. अब ऑथर के जो पेरेंट्स थे वो सिटी में अच्छे से सेटल हो गए थे, उन्होंने अपना घर ले लिया था और अब उन्होंने क्या करा, उनके पेरेंट्स ने ऑथर और ग्रैंड मदर को भी अपने साथ सिटी के हाउस में बुला लिया, सिटी में जो उन्होंने घर लिया वहाँ बुला लिया। अब ये जो सेकेंड फेज़ है ये ऑथर और ग्रैंड मदर के बॉन्ड का एक टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट होता है एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज, बहुत ही एक इनडिफरेंट चेंज उन दोनों के बॉन्ड में आता है। और क्या क्या चेंजेस उन दोनों के रिलेशनशिप में आते हैं, कैसा सेपरेशन उनके बॉन्ड में देखने को मिलता है, दैट वी विल कम टू नो। सेकेंड फेज़ ऑफ देयर बॉन्ड इज़ कॉल्ड अ टर्निंग पॉइंट। उनके सेकेंड फेज़ को क्या कहा गया है, उनके बॉन्ड के सेकेंड फेज़ को कहा गया है टर्निंग पॉइंट, राइट। टर्निंग पॉइंट इज़ अ ड्रास्टिक चेंज, एक बहुत ही अलग सा बदलाव। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी। I used to go to an English school in a motor bus. There were no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. Now what changes had occurred in their relationship? किस तरह के changes आ गए उनके relationship में? अब ग्रैंड मदर ऑथर को अपने साथ स्कूल नहीं ले जा पाती थी। क्यों नहीं ले जा पाती थी? क्योंकि अब ऑथर इंग्लिश स्कूल में जाने लगे थे और स्कूल की बस रोज़ाना उन्हें घर से ले जाने के लिए आया करती थी। तो ग्रैंड मदर अब उनके साथ नहीं जा पाती थी, बहुत कम टाइम स्पेंड किया कर पाती थी। हालांकि वो लोग अभी भी एक ही रूम में रहते थे, जैसे वो विलेज में रहा करते थे वो एक ही रूम में रहते थे, लेकिन अब ऑथर बहुत कम टाइम अपनी ग्रैंड मदर के साथ स्पेंड करते थे। ना वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ स्कूल जा पाते थे, ना ग्रैंड मदर अब उनकी पढ़ाई में हेल्प कर पाती थी, ना ग्रैंड मदर और वो दोनों मिलकर डॉग्स को फीड कर पाते थे, क्योंकि अब ग्रैंड मदर बाहर नहीं जाती थी तो डॉग्स को भी फीड करना बंद कर दिया था उन्होंने। लेकिन नेचर नेवर चेंजेस, नेचर कभी नहीं बदलता। ग्रैंड मदर एक सर्विंग लेडी हैं तो अभी भी उन्होंने सर्व करना नहीं छोड़ा। अब डॉग्स को फीड करने की बजाय वो अपने ही घर के कोर्टयार्ड में, वरांडा में बैठ जाया करती थी और वहाँ बैठकर वो स्पैरोज़ को फीड किया करती थी। As the years rolled by, we saw less of each other. For some time she continued to wake me up and get me ready for school. अब जैसे जैसे years rolled by means as time passes, right? जैसे समय गुजरता जाता है, टाइम बहुत सारे साल गुजर जाते हैं, वो दोनों एक दूसरे के पास बहुत कम बैठते हैं, बहुत कम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। बिकॉज ऑथर वॉज ऑल्सो गॉट बिजी इन हिज स्टडीज़, है ना। अब ऑथर भी अपनी पढ़ाई में बहुत बिजी हो जाते हैं। हालांकि ग्रैंड मदर कुछ टाइम तक तो अभी भी उन्हें सुबह उठाया करती थी, स्कूल के लिए रेडी किया करती थी, लेकिन धीरे धीरे वो भी बहुत कम हो जाता है क्योंकि ऑथर भी ग्रो अप हो जाते हैं। ऑथर की पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है, वो अपनी पढ़ाई में एंगेज हो जाते हैं। ग्रैंड मदर उनकी पढ़ाई में कोई हेल्प नहीं कर पाती हैं, तो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कम टाइम स्पेंड करने लगते हैं और इसी तरह उनके बॉन्ड में एक सेपरेशन आने लगता है, बदलाव आने लगता है। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. अभी भी ग्रैंड मदर रोज़ाना जब ऑथर स्कूल से आते थे तो उनसे पूछा करती थी कि स्कूल में टीचर ने उन्हें क्या पढ़ाया, और नैरेटर क्या बताया करते थे उन्हें, हमारे ऑथर क्या बताते थे। I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes' principle, the world being round, etc.
और ऑथर जब स्कूल से आते थे और ग्रैंड मदर उनसे पूछती थी तो ऑथर उन्हें स्कूल में पढ़ाए गए जो इंग्लिश वर्ड्स थे वो बताया करते थे। साइंस में, वेस्टर्न साइंस में उन्हें क्या क्या पढ़ाया वो बताया करते थे। वो बताते थे कि उन्हें लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ाई है, आर्किमिडीज़ का प्रिंसिपल पढ़ाया है, वर्ल्ड राउंड है, ये साइंस में पढ़ाया गया है। लेकिन ये सब सुन के ग्रैंड मदर बिल्कुल भी खुश नहीं होती थी। दिस मेड हर अनहैप्पी। क्यों खुश नहीं होती थी? बिकॉज शी वॉन्टेड हर ग्रैंडसन टू लर्न स्क्रिप्चर्स, रिलीजियस बुक्स, राइट। वो चाहती थी कि उनके ग्रैंडसन यानी खुशवंत सिंह जो हैं रिलीजियस चीज़ों को पढ़ें, वैल्यूज़ को पढ़ें, स्क्रिप्चर्स को पढ़ें। और आपको पता है आजकल की वेस्टर्न एजुकेशन में तो ये सब कुछ नहीं पढ़ाया जाता है। आजकल तो साइंस पढ़ाई जाती है, इंग्लिश पढ़ाई जाती है, मैथ्स पढ़ाई जाती है। पुराने टाइम पे हमें स्क्रिप्चर्स पढ़ाए जाते थे। और ग्रैंड मदर की मेंटालिटी कहीं ना कहीं वैसी ही है, क्योंकि विलेज में ऑथर को केवल स्क्रिप्चर्स ही उनके स्कूल में पढ़ाते थे, उनके जो प्रीस्ट थे। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स। अब ग्रैंड मदर, क्योंकि ऑथर को अब वेस्टर्न साइंस पढ़ाई जाती थी, इंग्लिश वर्ड्स पढ़ाए जाते थे, तो अब ग्रैंड मदर उनकी हेल्प नहीं कर पाती थी, बिकॉज शी हैड नो आइडिया अबाउट वेस्टर्न साइंस और इंग्लिश वर्ड्स. She did not believe in the things they taught at the school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. ग्रैंड मदर को बिल्कुल भी भरोसा नहीं था इंग्लिश स्कूल में जो कुछ पढ़ाया जाता था उस पर, और वो बहुत डिसअपॉइंट होती थी ये सोचकर कि स्कूल्स में आजकल भगवान के बारे में या स्क्रिप्चर्स के बारे में कुछ भी पढ़ाया नहीं जाता है. सो what did grandmother like author to be taught in schools? She wanted that author to be taught scriptures and lessons on God in the schools, but that was not done. Only English words and Western science were taught in the schools, right? And that disliked grandmother, जो कि grandmother को बिल्कुल भी पसंद नहीं था. One day I announced that we were being given music lessons. एक दिन ऑथर स्कूल से आए और उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर को बताया कि अब आजकल उन्हें म्यूज़िक लेसन्स दिए जा रहे हैं, यानी उन्हें म्यूज़िक सिखाया जा रहा है. शी वॉज़ वेरी डिस्टर्ब. ग्रैंड मदर आपको पता है वो ओल्ड मैंटेलिटी की थी. यहाँ से हमें कम्युनिकेशन गैप भी दिखाई देता है. आप देखते होंगे कि हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके थॉट्स अलग होते हैं, आज हम न्यू जनरेशन वाले हैं, हमारे थॉट्स अलग होते हैं. तो ये जनरेशन गैप कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप को भी क्रिएट कर देता है. वैसा ही कुछ था. जैसे ऑथर को म्यूज़िक लेसन्स इतने इंडिफरेंट नहीं लगते थे, अलग नहीं लगते थे, लेकिन ग्रैंड मदर को म्यूज़िक लेसन्स पसंद नहीं थे. उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कि स्कूल्स में म्यूज़िक लेसन्स दिए जाएं. तो जैसे ही ऑथर ने बताया कि उनको स्कूल में म्यूज़िक लेसन्स दिए गए हैं, ग्रैंड मदर बहुत गुस्से में आ गई, बहुत परेशान हो गई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा. शी वॉज़ अ वेरी यू कैन से काइंड हार्टेड लेडी. वो बहुत काइंड हार्टेड थी, बहुत सिंपल थी. वो कभी किसी को ओवर रिएक्ट नहीं करती थी, गुस्सा नहीं करती थी, वो कभी एक्सप्रेसिव नहीं हुई बहुत ज़्यादा. टू हर म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशंस. इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हरलॉट्स एंड बैगर्स एंड नॉट मैंट फॉर जेंटल फोक. अब ग्रैंड मदर का क्या मानना था? उनका मानना था कि म्यूज़िक लेसन्स का जेंटल फोक, नोबल जो पीपल होते हैं, जो कि एक अच्छी सिविलाइजेशन से होते हैं, जो एक अच्छी फैमिली से होते हैं, जो सिविलाइज्ड होते हैं, ऑर्थोडॉक्स होते हैं, उन लोगों का म्यूज़िक और डांस से कोई रिलेशन नहीं होता. म्यूज़िक किसके लिए बना है? हार्लॉट्स के लिए बना है, यानी जो गाने बजाने वाले होते हैं उनके लिए बना है. बैगर्स जो भिखारी होते हैं उनके लिए बना है. लेकिन जो एक सिविलाइज फैमिली से होते हैं, एक अच्छी फैमिली से होते हैं, उन लोगों का म्यूज़िक से कोई रिलेशनशिप नहीं होता. ऐसा ग्रैंड मदर का मानना था. शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल. शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट. हालांकि ग्रैंड मदर ने कोई डिसअप्रूवल नहीं दिया अपना, उन्होंने मना नहीं किया ऑथर को पढ़ने से, क्योंकि उन्हें पता था दैट वाज द नीड ऑफ एन आवर. वो आज के समय की ज़रूरत थी और इसीलिए ऑथर को वो मना भी नहीं कर सकती थी. उनके मना करने से उनकी पढ़ाई रुक नहीं सकती थी, इसलिए ग्रैंड मदर ने उन्हें मना नहीं किया. लेकिन वो बहुत चुप रहने लगी, शांत रहने लगी, और ऑथर को समझ में आ गए, क्योंकि ऑथर और ग्रैंड मदर का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग था, उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी. ऑथर को समझ में आ गया कि ग्रैंड मदर की साइलेंस का मतलब ही डिसअप्रूवल है, उन्हें वो पसंद नहीं आया है. और उस दिन के बाद से ऑथर और ग्रैंड मदर एक दूसरे से बहुत कम बात करने लगे. अब धीरे धीरे ऑथर और बड़े हुए. व्हेन ही हैड ग्रोन अप, जब वो कॉलेज में आ गए, व्हेन ही स्टार्टेड टू गो इन अ यूनिवर्सिटी, अब वो यूनिवर्सिटी जाने लगे, कॉलेज जाने लगे.
When I went up to university, I was given a room of my own. The common link of friendship was snapped. My grandmother accepted her seclusion with resignation. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. अब जब ऑथर यूनिवर्सिटी जाने लगे तो उनके पेरेंट्स ने उनको एक सेपरेट रूम दे दिया, क्योंकि अब वो पढ़ाई में बिज़ी हो गए, उनको बहुत सारा अलग काम हुआ करता था. नाउ ही वॉज नॉट लिविंग विथ हिज ग्रैंड मदर इन द सेम रूम. अब वो दोनों ग्रैंड मदर और ऑथर एक रूम में नहीं रहते थे. अब ग्रैंड मदर और ऑथर के बीच में जो छोटा मोटा बॉन्ड बचा भी था फ्रेंडशिप का, वो धीरे धीरे स्नैप हो गया, यानी टूटने लगा, बहुत अलग होने लगा, कम होने लगा. दोनों के बीच का बॉन्ड बहुत वीक हो गया, कमज़ोर हो गया. ग्रैंड मदर ने उस सेक्लूजन को, उस सेपरेशन को भी एक्सेप्ट कर लिया. ग्रैंड मदर देखिए कितनी ज़्यादा पोलाइट और कितनी पेशेंट लेडी हैं. वो हर चीज़ को टॉलरेट करती हैं. पहले उन्होंने अपने ग्रैंडसन के साथ स्कूल ना जाना, उनकी पढ़ाई से जो भी डिफरेंस आया उनकी पढ़ाई में, उसको भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया. फिर अब जब उन्हें रूम अलग दे दिया गया तो उन्होंने वो भी एक्सेप्ट कर लिया. तो वो बहुत ही ज़्यादा पेशेंट और टॉलरेंस रखने वाली लेडी हैं. अब वो क्या करती थी पूरे दिन भर, क्योंकि अब ऑथर तो उनके पास होते नहीं थे, अब वो ऑथर से ज़्यादा बात कर नहीं पाती थी. ऑथर गॉट बिजी इन स्टडीज़, उनको एक रूम भी अलग दे दिया गया था. नाउ ग्रैंड मदर एंगेज्ड हर सेल्फ इन स्पिनिंग व्हील एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स. अब ग्रैंड मदर ने अपने आप को किस में एंगेज कर लिया, अब वो सारा दिन भर बैठ के व्हील स्पिन किया करती थी. आपने गांधी जी को देखा होगा, उनकी फ़ोटोज़ में व्हील स्पिन करते हुए, चरखा चलाते हुए देखा गया है. तो सारे दिन भर व्हील स्पिन किया करती थी, प्रेयर्स बोला करती थी. प्रेयर बोलना तो उनकी आदत थी, शी वॉज़ अ रिलीजियस लेडी, है ना. और सारे दिन भर वो वरांडा में बैठकर केवल व्हील स्पिन करा करती थी. और उनके हाथ में क्या होती थी, जैसे आपने पहले भी पढ़ा, उनके हाथ में एक रोज़री होती थी और सारे दिन भर वो उस रोज़री को बीट किया करती थी. वाइल शी सैट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल क्रम्स एंड ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज. पूरे दिन भर तो वो व्हील स्पिन करती थी, प्रेयर्स बोला करती थी, और केवल जो आफ्टरनून का टाइम होता था तब वो अपने आप को कुछ टाइम के लिए फ्री करती थी इन कामों से. और वो टाइम उनके लिए बहुत ही प्रीशियस टाइम होता था, क्योंकि उस टाइम में वो स्पैरोज़ को फीड करती थी. ब्रेड ले लेती थी वो अपने हाथ में और उन ब्रेड के छोटे छोटे क्रम्स तोड़ लिया करती थी और स्पैरोज़ को दिया करती थी. 100 of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirpings. Loud noise, right? Veritable bedlam means a loud crack or a loud noise. अब सारी birds भी वो बहुत जो ग्रैंड मदर थी वो बहुत ही सर्विंग, बहुत पेशेंट, बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड लेडी थी. वो कभी भी बर्ड्स को उड़ाया नहीं करती थी, भगाया नहीं करती थी. बर्ड्स चुपचाप आकर बैठ जाती थी, बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ें करती थी और ग्रैंड मदर के हाथ से वो ब्रेड क्रम्स खाया करती थी. सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, अदर्स ऑन शोल्डर्स, सम इवन सेट ऑन हर हेड. शी स्माइल्ड बट नेवर शूट देम अवे. देखा आपने ग्रैंड मदर कितनी काइंड हैं. जब बर्ड्स आती थी तो वो कुछ बर्ड्स उनके पैर पे बैठ जाती थी, कुछ उनके शोल्डर्स पे बैठ जाती थी, कुछ उनके हेड पे बैठ जाती थी. लेकिन ग्रैंड मदर इतनी काइंड हार्टेड लेडी थी कि वो कभी भी उन्हें भगाया नहीं करती थी, उड़ाया नहीं करती थी, बल्कि वो स्माइल करके उनको ब्रेड क्रम्स खिलाया करती थी. It used to be the happiest half hour of the day for her. What used to be the happiest half hour of the day? फीडिंग द स्पैरोज, राइट. ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा. ग्रैंड मदर के पूरे दिन भर का सबसे हैप्पीएस्ट आवर कौन सा होता था, हाफ एन आवर, जब वो स्पैरोज़ को फीड किया करती थी, राइट. और बाकी वो पूरा टाइम क्या करती थी, शी यूज़ टू स्पिन द व्हील एंड शी यूज़ टू रिसाइट प्रेयर. सारे दिन भर वो अपनी रोज़री हाथ में लेकर प्रेयर्स बोला करती थी. हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन प्रेयर्स. सारा दिन भर उनके लिप्स किस में चला करते थे, प्रेयर्स में चला करते थे. और उनके हाथ हमेशा रोज़री, एक हाथ उनका रोज़री चलाने में बिज़ी रहता था और एक हाथ व्हील को स्पिन करने में बिज़ी रहता था. और हाफ एन आवर दिन में वो निकाल कर स्पैरोज़ को फीड किया करती थी, राइट. व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़. अब उन दोनों के रिलेशन में एक और बहुत बड़ा डिफरेंस आया, एक सेपरेशन आया. क्या आया? नाउ ऑथर हैड कम्प्लीटेड हिज स्टडीज़ इन कॉलेज, ही हैड बीन ग्रेजुएटेड. अब वो ग्रेजुएट हो गए, उन्होंने कॉलेज पूरा कर लिया. नाउ ही वांटेड टू गो अब्रॉड फॉर हिज फर्दर स्टडीज़. अब वो बाहर जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते थे.
I was sure my grandmother would be upset. I would be away for 5 years. For how long was he going for abroad? वो कितने टाइम के लिए अब्रॉड जा रहे थे? He was going for 5 years. 5 years के लिए वो अब्रॉड जा रहे थे और उन्हें पता था जब ग्रैंड मदर को ये पता चलेगा तो वो बहुत अपसेट हो जाएंगी. And at her age one could never tell, but my grandmother could. She was not even sentimental. She came to leave me at the railway station but did not talk or show any emotion. Her lips moved in prayer. Her mind was lost in prayer. Her fingers were busy telling the beads of her rosary. Silently she kissed my forehead, and when I left I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. अब ऑथर को काफ़ी डर लगने लगा बिकॉज ग्रैंड मदर गॉट टेरिबली ओल्ड. ग्रैंड मदर बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गई थी और ऑथर को ये डर था कि जब वो 5 years बाद वापस आएंगे पता नहीं उन्हें उनकी ग्रैंड मदर दोबारा मिल भी पाएंगी या नहीं. वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं. लेकिन ग्रैंड मदर जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाली लेडी थी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी. वो बिल्कुल भी इमोशनल नहीं हुई, वो बिल्कुल भी सेंटिमेंटल नहीं हुई, बल्कि उन्होंने तो अपने आप को बिज़ी कर लिया था प्रेयर्स में और व्हील में, तो वो बिल्कुल सेंटिमेंटल इमोशनल नहीं हुई. उन्होंने अपने आप को इस मटेरियल वर्ल्ड से बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर लिया था. तो जब ऑथर जाने लगे तो वो ऑथर को स्टेशन तक छोड़ने गई और इवन उन्होंने ऑथर के फोरहेड पर किस किया और ऑथर को ये लगा कि शायद ये उन दोनों के बीच का आखिरी फ़िज़िकल कांटेक्ट है. इसके बाद वो कभी अपनी ग्रैंड मदर को नहीं मिल पाएंगे. तो आपने देखा ऑथर तो फिर भी इमोशनल हो गए. उन्हें थोड़ा सा डर लगने लगा कि पता नहीं वो अपनी ग्रैंड मदर से मिल पाएंगे या नहीं. देखिए भले ही उनके बीच में उनके बॉन्ड में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया था, बट स्टिल दे बोथ लव्ड ईच अदर, स्टिल दे बोथ केयर्ड फॉर ईच अदर. अभी भी वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे. ऐसा हमेशा होता है, ग्रैंड पेरेंट्स और हम लोग चाहें कितना भी दूर रह लें लेकिन हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स हमसे कभी भी अपना अफेक्शन ख़त्म नहीं करते हैं. वैसा ही ऑथर और ग्रैंड मदर के साथ था. तो ग्रैंड मदर ने उनको किस किया उनके फोरहेड पर और एंड शी सेड गुड बाय टू हर ग्रैंडसन, और उन्होंने अपने ग्रैंडसन को गुड बाय किया. बट दैट वॉज नॉट सो. आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन. शी डिड नॉट लुक अ डे होल्डर. शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स एंड वाइल शी clasped मी इन हर आर्म्स. क्लास्प मीन्स ग्रास्प. ओके. In her arms, I could hear her reciting her prayers. Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer, and with frivolous rebukes. Right? तो अभी ऑथर जब 5 years बाद वापस अपनी पढ़ाई पूरी करके लौटे, सो ऑन हिज सरप्राइज़ उन्होंने क्या देखा? वो सरप्राइज़ हो गए देखकर कि ग्रैंड मदर अभी भी बिल्कुल वैसी ही थी, बट स्टिल शी वॉज बिजी इन हर प्रेयर्स. अभी भी वो अपनी प्रेयर्स में ही बिजी थी. शी नेवर लेफ्ट प्रेयर्स. वो कभी प्रेयर करना नहीं छोड़ती थी. उन्होंने अपने आप को मटेरियल वर्ल्ड से अलग कर लिया था और अपने आप को केवल प्रेयर्स में ही बिजी रखा करती थी. अब ऑथर 5 years बाद वापस लौटे. ग्रैंड मदर ने उनको हक किया, उन्हें ग्रास्प किया, और अभी भी वो अपनी प्रेयर्स में ही बिजी थी और स्पैरोज़ को फीड करने में बिजी थी और अपनी प्रेयर्स गाने में बिजी थी. इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर. ऑन द डे व्हेन ऑथर केम फ्रॉम अब्रॉड. जिस दिन ऑथर वापस आए उस इवनिंग में ग्रैंड मदर के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आया जो आज तक कभी नहीं देखा गया. शी डिड नॉट प्रे. क्या चेंज आया? दैट शी स्टॉप्ड प्रेयर्स. उन्होंने प्रे करना छोड़ दिया, जो वो कभी नहीं छोड़ती थी. वो तो रिलीजियस लेडी थी, वो हमेशा प्रेयर्स बोलती रहती थी, लेकिन आज पहली बार आज शाम को उन्होंने प्रेयर करना छोड़ दिया. शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, got an old drum and started to sing. For several hours she thumbed the sagging skin of the dilapidated drum. Dilapidated drum means old drum, जिसकी स्किन बहुत worn out हो जाती है. राइट. अब ग्रैंड मदर ने क्या किया? प्रेयर्स करना छोड़ दिया. अपने नेबर्स की सारी लेडीज़ को इकट्ठा किया, एक पुराना सा ड्रम ले लिया जिसकी स्किन बहुत ज़्यादा रफ़ और वॉर्न हो गई थी, एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स. और ज़ोर ज़ोर से वो सॉन्ग गाने लगी. कौन सा सॉन्ग? होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स. जब वॉरियर्स लड़ के आते थे, बैटल जीत के आते थे, तो जो गाने गाए जाते थे, गीत गाए जाते थे, वो सॉन्ग वो गाने लगी. ऑन द अराइवल ऑफ हर ग्रैंडसन. अपने ग्रैंडसन के वापस आने पर. वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग.
पूरी फैमिली वाले उनको मना करने लगे कि भाई आप इतना स्ट्रेस मत लो. एट हर एज इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू टेक सच स्ट्रेन ऑन बॉडी. तो सबको पता था कि इस उम्र में इतना स्ट्रेन लेना बॉडी पर सही नहीं था. सब उनको मना करने लगे. दैट वॉज़ द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे. ऑथर कहते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ था जब से वो अपनी ग्रैंड मदर को उन्होंने देखा था. पहली बार ऐसा हुआ था जब उन्होंने प्रेयर्स करना छोड़ दिया था. द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल. तो बहुत स्ट्रेन लेने की वजह से, बहुत स्ट्रेस लेने की वजह से अगली सुबह ग्रैंड मदर बीमार हो जाती हैं. एंड इट वॉज़ अ माइल्ड फीवर. माइल्ड होता है बहुत हल्का सा फीवर, राइट. उनको बहुत हल्का फीवर था. एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो. डॉक्टर आए, उन्होंने क्या बोला, दैट देयर वॉज नथिंग टू वरी, द माइल्ड फीवर वुड गो. उन्होंने कहा हल्का फुल्का बुखार है, सही हो जाएगा. बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली. शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर. She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray. She was not going to waste any more time talking to us. लेकिन ग्रैंड मदर का परसेप्शन कुछ डिफरेंट था. उन्होंने क्या अनाउंस कर दिया, उन्होंने अनाउंस किया कि अब उनका एंड बहुत पास में है. ये उनकी लाइफ का आखिरी चैप्टर है और अब वो किसी से बात नहीं करना चाहती. केवल और केवल अपने आप को किस में बिज़ी रखना चाहती हैं, प्रेयर्स में बिज़ी रखना चाहती हैं. तो ग्रैंड मदर को पहले ही रियलाइज़ हो गया दैट नाउ शी वॉज गोइंग टू डाई. उनको पहले ही रियलाइज़ हो गया कि अब उनकी डेथ होने वाली है और अब वो बच नहीं पाएंगी. वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट. सब ने उन्हें रोकने की कोशिश की, सब ने उनको मना करने की कोशिश की, मनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं मानी. शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स. वो चुपचाप अपने बेड पे लेटी रहीं, प्रेयर्स बोलती रहीं और अपनी रोज़री की बीट्स को घुमाती रहीं. Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. इससे पहले कि सब उन्हें देखते, उनसे बात करते, उनको समझाते, उतनी ही देर में उनके लिप्स अचानक रुक जाते हैं, उनकी प्रेयर्स रुक जाती हैं और जिस फिंगर्स से वो रोज़री को बीट कर रही थी वो फिंगर्स से उनकी रोज़री गिर जाती है. दैट मीन्स शी वॉज डेड. अब उनकी डेथ हो चुकी थी. शी वॉज नो मोर. A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. एक शांति, एक बिल्कुल पीस उनके फेस पर दिखाई दे रहा था. She was very still, she was very calm and that means she was no more. और इसका मतलब था कि अब वो हमारे बीच में नहीं थी. We lifted her off the bed and as customary laid on her the ground and covered her with a red shroud. तो जैसा कि उनका कस्टम था, उन्होंने क्या किया, ग्रैंड मदर के कॉर्प्स को, उनकी डेड बॉडी को बेड से नीचे उतारा और उसको रेड कलर के श्राउड से, कफन से ढक दिया, जैसा कि उनका कस्टम था. सबके अलग अलग कस्टम्स होते हैं. आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल. इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर एंड टू टेक हर टू बी क्रेमेटेड. अब सब लोग कुछ टाइम के लिए, तो कुछ घंटों के लिए तो मौन किया ऑन हर डेथ. सब लोग बड़े दुखी हुए कि अचानक से ग्रैंड मदर की डेथ हो गई. बाकी सब उनके फ्यूनरल के अरेंजमेंट में लग गए. अब जब स्ट्रेचर लेके आए, जिस स्ट्रेचर पे लेके जाया जाता है डेड बॉडी को, वो स्ट्रेचर लेके आए. इवनिंग का टाइम था. ग्रैंड मदर की डेड बॉडी जिस रूम में थी वहाँ स्ट्रेचर लेकर आए तो उन सब ने क्या देखा, द सन वॉज सेटिंग एंड इट लिट हर रूम एंड वरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट. वो सन सेट होने का टाइम था. पूरा रूम ऑरेंज एक ब्लेज गोल्डन लाइट से भर गया था. वी स्टॉप्ड हाफ वे इन कोर्टयार्ड ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ रैप इन द रेड श्राउड. थाउजेंड ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर. सरप्राइजिंगली सब ने वहाँ क्या देखा कि जिस वरांडा पे ग्रैंड मदर की डेड बॉडी रखी हुई थी, श्राउड से कवर्ड थी, उनके चारों तरफ थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज इकट्ठी थी और बैठी हुई थी. What do you think? Why sparrows came on that day? To get food or something else? Let's see. There was no chirping. We felt sorry for the birds and my mother fetched some bread for them. अब उनकी मदर, जो ऑथर की मदर है, उन्होंने सोचा कि बेचारी बर्ड्स को अब खाना कौन देगा, तो वो उनके लिए ब्रेड्स के क्रम्स लेके आई और जैसे ग्रैंड मदर छोटे छोटे क्रम्स में तोड़कर ब्रेड उन्हें दिया करती थी, वैसे ही उन बर्ड्स को उन्होंने क्रम्स दिए. शी ब्रोक इनटू लिटिल क्रम्स द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्रू इट टू दैम.
द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड। लेकिन सरप्राइजिंगली क्या हुआ, स्पैरोज ने, किसी एक स्पैरो ने भी ब्रेड पर ध्यान नहीं दिया। When we carried my grandmother corpse off, they flew away quietly. जैसे ही ग्रैंडमदर की डेड बॉडी को वहाँ से ले जाया गया क्रिमेशन के लिए, सारी स्पैरोज वहाँ से चुपचाप उड़ गई। एंड नन ऑफ द स्पैरो हैड ईटन एनी थिंग देयर। किसी भी स्पैरो ने कुछ भी नहीं खाया। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप द ब्रेड क्रम्स इन टू द डस्टबिन। और अगली सुबह उन ब्रेड क्रम्स को स्वीपर ने उठाकर डस्टबिन में डाल दिया। So what do you think now why sparrows came there? Like author and other people, sparrows were also feeling very remorse and disappointed on the death of that fine soul, on the death of the grandmother, and they only came just to pay a tribute to the great lady, to the grandmother, right? तो वो सारी जो स्पैरोज़ थी वो खाना खाने उस दिन नहीं आई थी, बल्कि वो ग्रैंड मदर को ट्रिब्यूट देने के लिए, अपना दुख दिखाने के लिए वहाँ पर आई थी। दैट्स वाई दे डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू द ब्रेड क्रम्स। एंड इवन आफ्टर when grandmother corpse was taken away from there, then birds flew away and they did not pay any heed to the breadcrumbs, right? So now you know that what kind of lady grandmother was and what kind of bond author and grandmother used to share. I hope students you have understood the chapter well. Now it's your task to find out the question answers to the given questions. If you find any problem in answering these questions, you may send your question in the comment box. I will answer you, or I will make one more video for the answers of this chapter. Okay, till then keep learning and keep reading. Have a nice day. Thank you.